We have completed till shlok number 10. So now we are starting from 11 to 15, another 5 shloks. So we'll start with Mangalacharan. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Satam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vritamscha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaur Twise Namaha Shri Nityananda Avadhurtendur Vasuta Prana Vallabha Janava Jivitipatihi Krishna Prema Pada Prabhu Padmavati Sutta Shriman Sachinandana Purvajaha Bhavanmatra Jagatrata Rakta Gaura Kalevaraha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Namo Radhe Vrishalakshi Chandrakoti Samaprabha Shri Krishnam Samhitam Dehi Nityakunj Viharinim Radhe Meri Swamini Main Radha Ju Koda Janam Janama Mohidi Jio Shri Vrindavanava सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे everyone together Hare Krishna Hare Krishna Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 One more time. हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Wonderful. So it's a time of recap. Anyone else would like to say something? I know Sailesh Prabhu and Megha might tell, but anyone else would like to say? कुछ तो याद रहा होगा. Or should we remove the recap session from our lecture? कुछ याद है पिछले सप्ताह से? हरे कृष्ण प्रभु. Yes, Prabhu. પ્રભુ આપણે લાસ્ટ વીક 9.6 થી 9.10 સુધી આપણે સ્ટડી કરેલું. એમાં સામાન્ય માણસ માટે ભગવાન કહે છે કે એ સમજવું મુશ્કેલ છે કે આ સૃષ્ટિ ભગવાન પર કેવી રીતે આશ્રિત રહે છે. એટલે પછી એક્ઝામ્પલમાં આપણે લીધેલું કે વાયુ જે છે તે આખા બ્રહ્માંડમાં બધે વ્યાપેલું છે અને એ વાયુ પર બધા ગ્રહ બધા સ્ટેડી રહેલા છે. પણ એ વાયુ ઓલરેડી આકાશની અંદર આવેલું છે એટલે આકાશ સૌથી મોટું છે. પણ આ બધી જે ઈચ્છા છે તે ભગવાનની ઈચ્છાઓની સરળ આખી સૃષ્ટિની રચના થઈ છે. પછી ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે જ્યારે કલ્પનો અંત થાય ત્યારે બધા પ્રાણી ભગવાનની અંદર પ્રવેશ કરે છે અને બીજા કલ્પના પ્રારંભે ભગવાનની શક્તિથી પાછા એ પૃથ્વી પર પાછું બધું અવતરણ થાય છે. અને પછી આપણે એક્ઝામ્પલ લીધેલું બ્રહ્માજીના 100 વર્ષ અને 14 ચતુર્યુગ બ્રહ્માજીની એક રાત્રિ અને એક. Prabhu, can you hear me? We lost you. So ब्रह्मा का एक दिन इज इक्वल टू 14 चतुर्युग, जिसको एक कल्प कहा जाता है. और वही ब्रह्मा की एक रात्रि इज ऑल्सो 14 चतुर्युग इज इक्वल टू 1 कल्प. So 24 hour of Brahma is technically 2 kalp, right? So ब्रह्मा का जब दिन शुरू होता है तो वो इस प्लानिटरी सिस्टम की रचना करते हैं. उसमें सभी जीव एंटर करते हैं, वो अपना जीवन जीते हैं. और जब रात्रि होती है तब ब्रह्मा इन प्लानिटरी सिस्टमों का नाश करते हैं, सिवाय 3 प्लानिटरी सिस्टम के, जो ऊपर के 3 हैं इंक्लूडिंग हिज लोक का. उनका भी नाश होता है जब ब्रह्मा के 100 साल कंप्लीट होते हैं, अर्थात जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तब ऑल 14 प्लानिटरी सिस्टम का नाश हो जाता है. यस ब्रो, सॉरी वी लॉस्ट. आई कंटिन्यू. या ओके. પછી પ્રભુ ભગવાને અર્જુનને કીધું કે સંપૂર્ણ વિરાટ જગત જે છે ભગવાનને અધીન છે, જે ભગવાનની ઈચ્છાથી વારંવાર પ્રગટ થાય છે અને અંતમાં નષ્ટ થાય છે. અને ત્યાં આપણે એક્ઝામ્પલ લીધેલું કે બ્રહ્મદેવ જે છે એનું જ્યારે જન્મ ભગવાનની નાભીમાંથી થયેલો ત્યારે એમને કઈ સમજ નહીં હતી. પછી એમણે તપ કર્યું, એમ પાણીના વાત એટલે 65,000 વર્ષ સુધી એમણે તપ કર્યું. પછી એમને જ્ઞાન થયું અને પછી એમને પેલું આપણે એક્ઝામ્પલ લીધેલું કર્મોદક્ષાઈ વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાઈ વિષ્ણુ અને શિરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ. નેક્સ્ટ પછી ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે બધા કર્મો ભગવાનને નથી બનતા, પણ ભગવાન સદા વિરક્ત રહે છે અને બધા કર્મો ભગવાનની શક્તિ અને ઈચ્છા દ્વારા થાય છે અને તેઓ બધા પર નિયંત્રણ અને અવલોકન કરે છે. અને એક્ઝામ્પલ લીધેલું આપણે ઉચ્ચ ન્યાયાધીશનું. અને પછી આપણે કીધેલું કે આ પૃથ્વી જે છે એ નાની જેલ જેવું છે યુનિવર્સમાં, કે જેલ જે છે તે એકદમ નાની વસ્તુ હોય છે. એટલે બધા જે સુખ અને દુઃખના કર્મો ભોગવવા માટે જે બધા જીવો પૃથ્વી પર અવતરિત થાય છે કે આ બ્રહ્માંડ આવે છે તે એક નાની વસ્તુ છે. એના કમ્પેરમાં જે વૈકુંઠ ધામ અને જે ધામ છે એ ઘણું મોટું છે. નેક્સ્ટ પછી ભગવાને અર્જુનને કીધું કે આ જે બધી ભૌતિક શક્તિ છે એ બધી ભગવાનની એક શક્તિઓમાંની જ એક છે, જે ભગવાન વતી કાર્ય કરે છે. એટલે બધા ચર અને અચર જીવો પાણી જે ઉત્પન્ન થાય છે અને વારંવાર જગતમાં સર્જન અને વિસર્જન પામે છે. ઓકે બ્રો. Thank you bro. Wonderful. So we are starting from 11
to 15. Shlok number 11, chapter number 9. Avajananti mam mudha manushim tanumashritam param bhav मजानंतो मम भूत महेश्वरम। कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते या नहीं जानते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब भी वो मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो जो मूर्ख लोग हैं वो उनका उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। We have seen this in महाभारत, right? जब भगवान खुद दुर्योधन के सामने संधि प्रस्ताव लेके जाते हैं पूरी कुरु सभा के अंदर, तो जो भक्त यहाँ है जैसे पितामह भीष्म है, कुलगुरु है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, ये सब लोग, विदुर जी हैं, ये भगवान को कितने भाव से, कितने भक्ति से भगवान का अवकार्य करते हैं, उनको उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं इसके अंदर, कुरु सभा के अंदर, जब वो संधि प्रस्ताव लेके जाते हैं दुर्योधन के सामने। ये करने के बाद भी चलो मनुष्य स्वरूप में तो नहीं समझ पाया वो, पर जब भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं फिर भी वो भगवान को नहीं समझ पाते, फिर भी भगवान का उपहास करते हैं और भगवान को बांधने की चेष्टा करते हैं, राइट? तो इसी का एग्जाम्पल भगवान यहाँ पे दे रहे हैं टेक्निकली, कि जब वो मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो मूर्ख लोग हैं जैसे दुर्योधन है, उनके सामने भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, फिर भी वो भगवान से विमुख होने के कारण भगवान का उपहास करते हैं या भगवान को नहीं समझ पाते। सो प्रभुपाद जो समझा रहे हैं वो क्या है कि इस अध्याय के पहले पूर्ववर्ती श्लोकों से ये एक चीज स्पष्ट होती है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सर्जन, पालन, संहार करते हैं वो कभी मनुष्य हो ही नहीं सकते। इट इज अ वेरी लॉजिकल थॉट कि जो इतने बड़े विश्व जो अनंत है, हमें पता नहीं कि हमारे आकाश में कितनी आकाश गंगाएं हैं, कितने प्लैनेटरी सिस्टम है, इट्स इन्यूमरेबल। उन सब का जो सर्जन करने वाला जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो कभी सामान्य मनुष्य हमारे जैसा नहीं हो सकता। इट हैज टू बी सुपीरियर देन व्हाट इज मैनिफेस्टेड ऑलरेडी। तो भी कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। I have heard some of the people and I have read some of the people. वो गीता के बारे में डॉक्यूमेंट्री लिखते हैं, लेकिन उसके अंदर कहते हैं कि कृष्णा वॉज अ सुपर ह्यूमन। वो एक बहुत शक्तिशाली, बहुत ही स्मार्ट, जिसके पास कुछ अच्छी शक्तियां थी बिकॉज ऑफ हिज लर्निंग और प्रैक्टिस, और जिसको वो दिखाते थे। एंड पीपल माइट थिंक दैट ही इज अ भगवान, बट ऐसा कुछ नहीं है, ही इज जस्ट अ सुपर ह्यूमन। तो भगवान ऐसे लोगों का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि अनेक मूर्ख है जो भगवान को शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। जबकि ब्रह्म संहिता आप पढ़ोगे तो उसके अंदर जो ब्रह्मा है, जो पहले पुरुष है, जो पहले जीव है इस सृष्टि के अंदर, जिन्होंने सभी प्लैनेटरी सिस्टम की रचना की, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने उसी ज्ञान को ब्रह्म संहिता के अंदर डॉक्यूमेंट किया। और उसके अंदर जो पहला श्लोक है वो क्या है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण। ये ब्रह्मा जी पुष्टि करते हैं, जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो उसकी पुष्टि करते हैं। और ये किसके गुरु है? देवर्षि नारद के गुरु है। देवर्षि नारद किसके गुरु है? वेदव्यास के गुरु है। तो जितनी भी आपके पास लिटरेचर है, उनके रचयिता है महर्षि वेदव्यास, और उनके जो दादा गुरु है, राइट, वो ब्रह्मदेव है। क्योंकि वो पहले पुरुष है, जो पहले जीव है, उन्होंने सृष्टि की रचना की, जिनको पहला ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने ही सभी जीवों में से वो पहले जीव है जिन्होंने वैकुंठ का दर्शन किया, जिन्होंने भगवान नारायण का दर्शन किया, जिन्होंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। तो ये लिखते हैं कि भगवान कौन है? ये बोले वो भगवान कृष्ण है, राइट। ही इज भगवान, ही इज परम पुरुष। तो पिछले श्लोकों में जिन अद्वितीय कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। दैट इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, क्योंकि वे
कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ, he was the person who is helping Arjuna and Pandava through political knowledge, और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर वो कर्म करते रहते थे, राइट। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर जो है वो सच्चिदानंद विग्रह है। दिस इज व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेन। सो वापस से भगवान क्या कहते हैं 9.11 में कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो जो मूर्ख लोग हैं वो मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते। 9.12 मोगाशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेत स राक्षसी मासुरीम चेव प्रकृतिम मोहिनी श्रिता। कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, जो भगवान को भगवान नहीं समझ पाते, जो मूर्ख होते हैं, भगवान उनकी बात कर रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा जो रहती है, होप फॉर लिबरेशन, या उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान को पाने का, ज्ञान का अनुशीलन, सभी जो एक क्रियाएं हैं वो निष्फल हो जाती है। मुझे पता नहीं आप लोग किसी ऐसे इंसान के टच में आए कि नहीं जो इस कैटेगरी का हो, लेकिन उसके जो सिम्टम्स रहते हैं, बिकॉज आई केम इन कॉन्टेक्ट व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, व्हेन आई वाज वर्किंग इन स्टेट्स, आई हैव कम अक्रॉस मैनी पीपल जो भारत में जिनका जन्म हुआ है, जिनको पता है गीता क्या है, महाभारत क्या है, बट उनकी जो मति है वो इस प्रकार की होती है कि जो भगवान को भगवान नहीं मानते, सुपर ह्यूमन मानते हैं। बट उनका अगर आप लाइफस्टाइल देखोगे, उनकी सोच देखोगे, तो वो नास्तिक विचारों से प्रेरित रहती है, राइट। इस अवस्था के अंदर उनको लिबरेशन अर्थात मुक्ति की बातें कभी समझ में नहीं आएगी। आप कितनी भी बार समझाओ तो मुक्ति की बातें नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो थॉट प्रोसेस है भगवान के प्रति वो ये है। इसका ये बाय प्रोडक्ट है कि आपका जो होप ऑफ लिबरेशन है, उसकी तरफ जाने की जो वृत्ति है, उसकी तरफ जाने का जो प्रयास है, या उसकी तरफ जाने की जो इच्छा है, वो मर जाती है। तो उनका जो होप ऑफ लिबरेशन है वो खत्म हो जाता है। उसके साथ साथ वो किसी सकाम कर्म में भी आगे नहीं बढ़ पाते, राइट। तो उनकी जो इस प्लैनेट के ऊपर जो सकाम कर्म की एक्टिविटी है उसका भी नाश होता है, राइट। और तीसरा, अगर उनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति ही नहीं है, जैसे भगवान ने पहले कहा है, हम लास्ट वीक स्टडी किया कि जो भक्त नहीं है या जिसको भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं है उसको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट एबल टू सरेंडर टू कृष्णा। तो होता यह है कि उनका जो ज्ञान का जो अनुशीलन है वो भी निष्फल हो जाता है। तो उनके तीनों जो बेसिकली जो एलिमेंट्स है, होप फॉर लिबरेशन, फ्रूटिव एक्टिविटीज या ज्ञान का अनुशीलन, ये सभी तरीके से निष्फल हो जाती है। जब प्रभुपाद इसको समझाते हैं तो क्या कहते हैं कि ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को भक्ति में रत दिखलाते हैं। कुछ लोग, कुछ डिवोटी भी है जो डिवोटी का चोला पहनते हैं, जो दिखाते हैं कि मैं भक्त हूं, लेकिन अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी 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 भी भक्ति फल प्राप्त नहीं होता। यानी दो यू आर हैविंग अ फैशन ऑफ डिवोटी, यू आर हैविंग अ अटायर ऑफ डिवोटी, यू आर हैविंग अ लाइफस्टाइल ऑफ डिवोटी, या और यू पोर्ट्रेड योरसेल्फ एज अ डिवोटी, लेकिन फिर भी आपको जो भक्ति का फल है वो प्राप्त नहीं होता। और भक्ति का फल क्या है? भगवान के अंदर श्रद्धा, भगवान के भक्तों के अंदर श्रद्धा, वो आपको प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्म में लगे रहकर अंततोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, राइट। सम पीपल डू सम सॉर्ट ऑफ यज्ञ, दे डू सम सॉर्ट ऑफ अनुष्ठान फॉर सम ऑफ द डेमिगॉड्स। वो क्यों करते हैं? ताकि उनको लगता है कि ये करने से मैं इस भव बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उनका वो प्रयास भी असफल होता है, क्योंकि वे भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं, राइट। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं, राइट, उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। आप जो भी देखते हो, जैसे आपने रामायण देखा, आपने महाभारत देखा, आपने कृष्णा देखा, उसमें आप देखोगे जितने भी राक्षस है, जितने भी अधम योनि के जीव है उसके अंदर दिखाते हैं, उनका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो भगवान के ऊपर हंसते हैं, वो भगवान का उपहास करते हैं, राइट। तो
उनको क्या समझना चाहिए, जो भी जीव आपके जीवन में आता है, जो भगवान के ऊपर हंसता है, भगवान का उपहास करता है, तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं से वो आसुरी या नास्तिक वृत्ति से प्रेरित है या उसके अंदर सिचुएटेड है, राइट। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है कि यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वास्मद बहिष्कार्यः श्रोतस्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचेलम स्नानमाचरेत। क्या कहता है बृहद विष्णु स्मृति का कथन कि जो कृष्ण के शरीर को भौतिक समझता है, सामान्य समझता है, उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह भी देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे ये जो छूत हुई है आपको वो दूर हो सके। ये बहुत ही प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। पहले तो आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज श्रुति एंड स्मृति? ये शब्द समझना जरूरी है। श्रुति क्या है और स्मृति क्या है? Is there anyone who can tell? Hare Krishna Prabhuji. Yes, Prabhuji. So Shruti is a dialogue from the Lord himself, जो भगवान ने खुद बताया है, और Smriti is a dialogue between two people. So the spiritual master can talk about it and disciple can hear it. Perfect. कोई example, Prabhu? So actually Bhagavad Gita come in both because actually come from Krishna himself. So it's a Shruti as well, and because he's the spiritual master of Arjuna, तो वो दोनों के बीच के dialogues हैं, तो it's considered Smriti as well. और Vedas is Shruti, Rama and Mahabharata is all Smriti. Yes. So श्रुति का मतलब क्या है? सुना हुआ, श्रुति, और स्मृति अर्थात समझा हुआ, जो आपने रियलाइज करके जिसको लिखा है। तो जो वेदा है वो भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, तो वेदास कम अंडर श्रुति। लेकिन जो लिटरेचर्स है या जो कमेंट्री आप कह सकते हो, दीज आर ऑल स्मृति। स्मृति जो है इज सबऑर्डिनेट टू द श्रुति। यानी स्मृति कहाँ से आई है? कोई स्मृति आके, वेरी गुड पॉइंट। तो स्मृति जो है वो सेल्फ कॉन्कॉक्शन नहीं है। जैसे बहुत सारे धर्मगुरु है, वो लिखते हैं अपने खुद से कि भैया ये मेरा खुद का नॉलेज है, आप उसको स्मृति नहीं कहोगे, क्योंकि वो स्मृति जो है वो नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द डिवाइन नॉलेज विच इज गिवन बाय भगवान हिमसेल्फ। जैसे प्रभु ने एग्जाम्पल दिया भागवत गीता, भागवत गीता स्मृति में आती है, बट इट इज श्रुति एज वेल, क्योंकि इट इज डिराइव फ्रॉम भगवान डायरेक्टली। सिर्फ वेद व्यास जी ने उनको कंपाइल किया, राइट। लेकिन कुछ लोग जो खुद से लिखते हैं, कहते हैं कि ये मुझे रियलाइजेशन हुआ, राइट। आई डोंट वांट टू गिव अ नेम, बट लेट मी गिव अ नेम। जैसे ऋषि प्रसाद जो आसाराम बापू का लिखा हुआ है, यू कैन नॉट कंसिडर एज अ स्मृति। या बीएपीएस या स्वामीनारायण के कुछ जो लिटरेचर है जो उन्होंने खुद से लिखे हैं, विच इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द श्रुति, आप उसको स्मृति नहीं कह सकते। इसी श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन है बेसिकली बृहद विष्णु स्मृति का, जिसमें कहा गया है कि जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, राइट, उसे स्मृति का कोई फल प्राप्त नहीं होता अनुष्ठान का। और अगर भूल से भी कोई उसका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत हो सकता है। इनके जो गुरु थे सहजानंद स्वामी, ही वाज अ रियल डिवोटी ऑफ कृष्णा। उनका जो एक स्टेटमेंट था इन शिक्षा पत्री, जो रियल शिक्षा पत्री है, विच दे नाउ चेंज इट बट विच इज द रियल वन, उसके अंदर सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया है। और उसमें कृष्ण भक्ति, कृष्ण के जो आलोचन है, जो लोग कृष्ण की आलोचना करते हैं, जो कृष्ण के अभक्त है, उन्होंने सिंपल वर्ड में यही कहा कि ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और ऐसे लोगों का आप दर्शन भी कर लो या उनके साथ भी अगर बैठ लो, कुछ 5-6 मिनट की वार्ता भी कर लो, तो भी अंडरस्टैंड कि आपके जितने पिछले जो अच्छे कर्म है उनका नाश हो गया। द रीजन फॉर दिस इज दे डोंट वांट टू एसोसिएट विद दिस काइंड ऑफ पीपल। क्योंकि ये जो भक्ति है, राइट, ये भक्ति है एक बीज की तरफ है, एक अंकुर की तरफ है, जो आपके अंदर प्लांट किया गया है आपके जन्मों जन्मों की साधना या किसी गुरु या किसी साधु की कृपा से।
किसी वैष्णव की कृपा से आपके हृदय के अंदर वो भक्ति का बीज जो है वो प्लांट किया गया है, और वो बहुत ही नाजुक है। जिनके घर पे तुलसी है वो समझ सकते हैं तुलसी को पालना कितना डिफिकल्ट है, बिकॉज तुलसी बहुत नाजुक है। वैसे ही भक्ति का जो बीज है जो आपके हृदय में जन्मों जन्मों की साधना, जन्मों जन्मों के अच्छे कर्म, किसी भागवत भक्त की कृपा, किसी वैष्णव की कृपा, किसी साधु संत, किसी गुरु की कृपा, या किसी पूर्वजों की साधना की कृपा, इन सब कृपा से आपको भक्ति का जो बीज मिलता है वो बहुत ही रेयर होता है। लेकिन ये जो लोग हैं जो अभक्त हैं, राइट, जो नास्तिक है, उनके विचारों का संग किया तो उनका एग्जाम्पल शास्त्र हाथी की तरह देता है। जैसे हाथी को अगर आप छोड़ दो किसी जगह पे तो हर आपकी जो खेत की जो क्रॉप है उसको तहस नहस कर देता है। वैसे ही ये जो भक्ति का बीज है अगर ऐसे लोगों के संग में आ जाए, राइट, तो क्या होता है, वो भक्ति का बीज जो जो आपने इतने जतन से आपके पास आया है वो तहस नहस हो जाने के चांसेस है। इसीलिए शास्त्र या गुरु या साधु जो बड़े बड़े हैं वो कहते हैं कि भैया ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के टच में आने से आपको छूत अछूत हो सकता है। हम हमारे ट्रेडिशन है ना कि भैया किसी लोअर कास्ट के बंदे को छू लिया या उसके कांटेक्ट में आ गए तो आप अछूत क्या, आपको छूत अछूत का वो क्या बोलते हैं प्रोसीजर करना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा ना, ऑल दिस थिंग। टेक्निकली इट इज नॉट छूत अछूत। शास्त्र कहता है कि छूत अछूत कब होता है, जब ऐसे अभक्त के संग में आप आते हो, क्योंकि उसकी वजह से आपने जो उस बीज को धारण किया है वो बीज आपका नष्ट होने के चांसेस 100% हो जाते हैं, राइट। सो दैट इज 9.12। 9.13 महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मानसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में भजते हैं या जानते हैं। तो यहाँ पे महात्मा नास्तु, राइट, महात्मा नास्तु वो शब्द को भगवान समझा रहे हैं कि महात्मा कौन है। दिस चैप्टर टेक्स्ट नंबर 13 एंड टेक्स्ट नंबर 14 दैट इज डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ महात्मा। उनके गुण क्या है कि जो महात्मा कैटेगरी में आते हैं। तो महात्मा कौन है उसके गुण जो है 13 और 14 में भगवान समझा रहे हैं। तो पहला जो गुण है उनका वो क्या है कि महात्मा का जो सबसे पहला लक्षण है वो यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल हम पहले ले चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन, नॉट एग्जाम्पल, इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले समझ चुके हैं। क्या है वो महात्मा, कि महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि वह दैवी प्रकृति के अंदर स्थित होता है, वो भौतिक प्रकृति के अंदर स्थित नहीं होता, राइट। और यह कैसे होता है, 7वें अध्याय में जो हमने समझा तो भगवान इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति से निकल के या उससे मुक्त होके भगवान की दैवी प्रकृति में स्थित होता है। कि जो ही कोई भगवान का शरणागत होता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, राइट। देखिए हमने पहले समझा है कि वी एज अ सोल, राइट, हम जब इस संसार के अंदर आते हैं तो हम मार्जिनल एनर्जी कहलाते हैं, हम तटस्थ एनर्जी कहलाते हैं। दूसरी तरफ क्या है, भगवान की माया देवी अर्थात भौतिक एनर्जी, और एक तरफ क्या है, भगवान की रमा देवी अर्थात भगवान की इंटरनल पोटेंसी, जिसको दैवी प्रकृति कहा गया है। अब अगर एग्जाम्पल लेना है तो आप कैसे ले सकते हो, आप तट के ऊपर खड़े हो, एक तरफ समुद्र की लहरें हैं और एक तरफ रेत है जिसे हम जमीन कहते हैं। आप एज ए तटस्थ एनर्जी आप वहां पे खड़े हो जहां पे पानी भी शुरू होता है और इस तरफ रेत भी शुरू होती है। जैसे ही आप भगवान की शरण ग्रहण करते हो, राइट, तो आप भगवान की दैवी प्रकृति में स्थित हो जाते हो। फिर जो आपका डीलिंग्स है वो भगवान की दैवी प्रकृति करती है। आपका जो पालन है, आपका जो कैरिंग है, वो सब भगवान की दैवी प्रकृति करती है, जिसे हम हलादिनी शक्ति भी कहते हैं। राधाष्टमी पे हमने इसको डिस्कस किया था। भगवान की हलादिनी शक्ति, भगवान की रमा देवी, भगवान की लक्ष्मी देवी
जो हम कहते हो भगवान की इंटरनल पोटेंसी है, वो भक्त को भगवान तक ले जाने में मदद रूप करती है। अगर भक्त के कोई क्या बोलते हैं, कोई कर्म इधर उधर है, ऊपर नीचे है, जिसकी वजह से अगर उसे कुछ भोगना पड़ेगा, तो माँ क्या करती है, उसे छोटा सा उसका एक सांकेतिक मात्र उसे कर्म का कर्मफल देती है। जैसे आपको अगर तलवार से कटना लिखा हो, घाव लिखा हो, तो माँ क्या करती है, अच्छा तलवार का घाव है, मैं तुम्हें उसके बदले सिर्फ ये पिंच कर देती हूँ। तो ये माँ का स्वरूप है, माँ का स्वभाव है, राइट। तो जब आप भगवान के सम्मुख होते हो, जैसे आप अपने पिता के सम्मुख रहते हो, तो माँ आपको हेल्प करती है, क्योंकि चाहती है कि वो आप पिता के और नजदीक आए, आपका पिता से प्रेम और घनिष्ठ हो। वैसे ही जो दैवी प्रकृति है, जो हलादिनी शक्ति है, शी विल टेक केयर ऑफ यू। अगर कुछ इधर उधर हो जाता है, अगर आपके जीवन में चढ़ाव उतार है, तो माँ क्या करती है, धीरे धीरे उस चढ़ाव उतार को सेटल करके आपको भगवान की तरफ ले जाने में मदद रूप करती है। लेकिन जब जीव भगवान से विमुख होता है, तो वो टेक्निकली इज लुकिंग टुवर्ड्स भगवान की भौतिक प्रकृति, राइट, अर्थात माया देवी, अर्थात दुर्गा देवी। और ये दुर्गा कौन है, इस जेल की वार्डन है जहां पे हम रहते हैं, जिसे हम भूमंडल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कुंठ। वैकुंठ मीन्स भगवान का प्लैनेट, कुंठ मीन्स दिस प्लैनेट। कुंठ अर्थात इसके दो संस्कृत में अर्थ है। कुंठ अर्थात की फोर्ट, किला, और दूसरा मतलब है कुंठ अर्थात जेल, राइट। तो ये जो कुंठ है, उसकी जो शक्ति है, या उसको जो संचालित करती है, वो है भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे हम माया देवी कहते हैं, जिसे हम दुर्गा देवी कहते हैं। और उनके पास क्या रहता है, त्रिशूल रहता है। आप देखते हो त्रिशूल, त्रिशूल के 3 पॉइंट रहते हैं। वो 3 पॉइंट क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। ये 3 प्रकार के कलेश से वो जीव को सजा देती है। आदि आत्मिक अर्थात खुद के शरीर उसके उसको संकट देता है, जैसे रोग आ जाना, राइट। आदि आत्मिक, आदि भौतिक। आदि भौतिक अर्थात किसी के बाहर स्वजन या विमुख जन की वजह से उसको जीवन में कलेश होना, राइट। जैसे अपने परिवारजनों से, अपने मित्रजनों से, अपने ऑफिस के कलीग से, अपने सुपीरियर से, अपने सबॉर्डिनेट से, दैट कुड बी एनी काइंड ऑफ कलेश, बट बिकॉज ऑफ समवन एल्स, इसे आदि भौतिक कहोगे। और आदि दैविक अर्थात आपको उस जगह पे सिचुएटेड कर देगी जहां पे सुनामी आने वाला हो, राइट, जहां पे फ्लड आने वाला हो। तो ये जो दुर्गा देवी है, वो इस त्रिशूल से क्या करती है, आपके कर्म के हिसाब से जो आपको भोगना है, वो सजा आपको प्रदान होती है। लेकिन जो ही जीव भगवान की तरफ सम्मुख हो जाता है, तो वही माया देवी कहती है कि अच्छा, तो उस कंपार्टमेंट में चला जा, वहां से रमा देवी इज गोना टेक केयर ऑफ यू, राइट। सो भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है, उसे यहाँ पे दैविक प्रकृति कहा गया है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन, मोह मुक्त अर्थात जो मोह से मुक्त हो चुके हैं, जो भगवान के भक्त बन चुके हैं, वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझ आदि तथा अविनाशी भगवान, मुझ आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में मुझे जानते हैं। तो इनको, ये इनका पहला गुण है। कौन है महात्मा का पहला गुण, कि वो दैवी प्रकृति में स्थित रहते हैं। दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया, दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, कि जैसे आप भगवान के भक्त बनते हो, भगवान की शरण ग्रहण करते हो, तो आप भगवान की दैवी प्रकृति में स्थित हो जाते हो। फिर आपको इस संसार से निकलने का रास्ता जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। अब 9.14 में उसका दूसरा गुणधर्म भगवान बताते हैं। क्या है वो, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कि ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। वापस से क्या कहते हैं भगवान की, महात्मा कौन है, पहले कि जो भगवान की दिव्य प्रकृति में स्थित हो जाते हैं, और उनका दूसरा क्या है कि वह मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, दे आर कीप ऑन ट्राइंग विद द फुल कन्विक्शन, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से, विद डिवोशन, निरंतर मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी अर्चना में लगे रहते हैं, राइट। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते हैं, वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे
तो जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए कीर्तन करे। ये कीर्तन के भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है। आप कुछ भी डिंग डोंग कीर्तन उठा सकते, आपको मिलेंगे बहुत सारे। दैट इज नॉट द कीर्तन। कीर्तन का डेफिनेशन क्या है? कीर्तन के अंदर या तो भगवान के नाम का स्मरण हो, या तो भगवान के गुण का स्मरण हो, या भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण हो। अगर ये तीन है उस संगीत के साथ, उस कीर्तन के अंदर, तो समझना कि आप कीर्तन कर रहे हो। कीर्तन अर्थात सिर्फ गाना नहीं होता। कीर्तन अर्थात ये जो हम कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कीर्तनम, बिकॉज मैं अपनी जिह्वा का प्रयोग करके आपको भागवत का संदेश सुना रहा हूँ, ये भी कीर्तन ही है। जो भी आप अपने जिह्वा से प्रचारित करते हो वो कीर्तन में आता है। तो आप जो भी बोलो या आप जो भी सुनाओ या जो भी गाओ, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? या तो भगवान का नाम उसके अंदर होना चाहिए, या तो भगवान के गुण उसके अंदर होने चाहिए, या भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण उसके अंदर होना चाहिए। अगर आप ये तीन चीज कर रहे हो तो समझना आप भगवानुवाद कर रहे हो, या भगवान की चर्चा कर रहे हो, या भगवान का सत्संग कर रहे हो। अगर ये तीन चीजें आपके आपके डिस्कशन के अंदर नहीं है तो आप उसको कीर्तन में क्लासिफाइड नहीं कर सकते। बहुत सारे महात्मा जन जब भगवान का संदेश सुनाने आते कहते हैं कि अब भागवतम की कथा है सप्ताह की, लेकिन उस 7 दिन के अंदर आपको भागवतम का एक श्लोक भी हार्डली यू आर एबल टू हियर। आप उसके अंदर सिर्फ संसार की बातें ही सुनोगे कि आपको ऐसा रहना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको ये पॉलिटिकली ऐसे रहना चाहिए, आपको माता पिता की सेवा। दिस इज ऑल गुड, दिस आर बेसिक क्राइटेरिया, बट वो कीर्तन में क्लासिफाइड नहीं होता जब तक आप भगवान का संवाद उसके अंदर नहीं है, भगवान का नाम उसके अंदर नहीं है, भगवान का गुण या भगवान की लीला नहीं है। तो आपका वो सप्ताह, भागवत सप्ताह इज जस्ट अ डिसेंट न्यूट्रल काइंड ऑफ डिस्कशन में ही क्लासिफाइड होगा, वो कीर्तन में क्लासिफाइड नहीं होगा। राइट। सो इस अध्याय के द्वितीय श्लोक में भी भगवान ने क्या कहा कि यह भक्ति न केवल सरल है। देखिए भगवान की भक्ति बहुत सरल है, इसीलिए तो देखो अब आगे एग्जाम्पल लिए है कि कैसे कैसे चित्र विचित्र काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में भगवान ने भक्तों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि भक्ति एक रमत मात्र है, एक बहुत सिंपल है। अगर आप समझ के करो तो उसमें आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाना है, वो बहुत सहज है, बहुत सरल है। राइट। तो इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है कि यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जाता है। कोई भक्त आपको ये देखिए, मैं खुद का अपना एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जब मेरा इनिशिएशन हुआ था, तो वैसे तो इनिशिएशन आप देखोगे किसी बड़े बड़े ऋषि मुनि जब इनिशिएशन करते हैं तो आपको पूरे दिन का फास्टिंग करना पड़ता है। राइट। जब मेरा खुद का इनिशिएशन हुआ था तो मुझे पहले जगन्नाथ जी के मंदिर का प्रसाद खिलाया गया। महाराज ने बोला कि नहीं, पहले प्रसाद खा के और फिर बात करते हैं। तो जब मैं प्रसाद पूरा आराम से प्रसाद खाते, बोले तेरा इनिशिएशन अभी कर दे। तो मैंने कहा मैंने तो भगवान का अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया जगन्नाथ जी के प्रसाद का। तो बोले ये भी जगन्नाथ जी की लीला, तेरे को खिला के इनिशिएशन देना होगा। तो भगवान की जो भक्ति है वो बहुत ही सुखपूर्वक की जाती है। पहला चीज, आपको कुछ ज्यादा उसमें तपस्या या खुद को गलाना नहीं पड़ता, बस अपने प्रेम से, सुख से भगवान की भक्ति करनी है। वो कहता है ना कि भूखे पेट भजन ना होए लाला, ये ले तेरी कंठी माला। राइट। तो भक्त खा के अच्छे से भगवान की भक्ति करता है, सुखपूर्वक करता है। तो इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है, इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में, राइट, अपने सही गुरु जो एक क्वालिफाइड टीचर है या क्वालिफाइड गुरु है, उनके निर्देशन में इस जीवन को, चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे वो सन्यासी में रहे, चाहे वो ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। देखिए ये गृहस्थ, ये सन्यासी, ये ब्रह्मचारी, ये अलग अलग लाइफस्टाइल है। राइट। जो आपकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कोई एग्जांपल देता हूं आपको कि ये मैंने पहले भी कोट किया है कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हो वृंदावन, राइट, कुछ प्रकार के जो ट्रैवलर्स होते हैं, यात्री होते हैं, उनको क्या होता है कि उनको सब कुछ चाहिए। उनको खुद का पिलो चाहिए, उनको खुद का ब्लैंकेट चाहिए, उनको खुद का पानी का बोतल चाहिए, खुद का ही प्रोटीन बार या टॉफी चाहिए, ये सब उनको खुद का ही खाना चाहिए। ये सब लेके चलते हो। मेरे पिताजी वैसे ही है। राइट। तो उनको ये सब चाहिए, दैट इज ऑल्सो फाइन। राइट।
कुछ और प्रकार के जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ अपना बैकपैक चाहिए, अगर साथ में कुछ हो तो उनको ये नहीं चाहिए मेरे को, मुझे संभालना पड़ रहा है, राइट। तो जो पहली कैटेगरी के लोग हैं जिनको सब कुछ साथ में चाहिए, वो गृहस्थ में आते हैं, नथिंग बैड अबाउट इट, इट इज दैट हिज लाइफस्टाइल, दैट इज हाउ हिज कैरेक्टरिस्टिक इज। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो सन्यासी या ब्रह्मचारी में होते हैं, उनको साथ में कुछ नहीं चाहिए तो ही दे आर एबल टू बी हैप्पी एंड फोकस्ड, वो सन्यासी कैटेगरी में आते हैं। बोथ आर राइट। आपके हिसाब से आपको वो लाइफस्टाइल चूज करनी है। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ पॉइंट शुड बी और द प्रायोरिटी शुड बी कि मैं कौन सी लाइफस्टाइल चूज करूं। क्या मैं गृहस्थ बन के भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकता हूं, तो आप गृहस्थ में रहना आपके लिए योग्य है। लेकिन गृहस्थ मुझे परेशान करता है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये सब चीजें मेरे से नहीं हैंडल होती, मैं बाबा बन के रह सकता हूँ, भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, तो भी आपके लिए ठीक है। तो आपके स्वरूप के हिसाब से आप गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी बन सकते हो, केवल और केवल अगर उद्देश्य आपका भक्ति करना है, राइट। तो आप अपने कंफर्ट जोन में रहिए, चाहे आप गृहस्थ बन के कंफर्ट जोन में रह के भक्ति कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आप सन्यासी या ब्रह्मचारी बन के भगवान की भक्ति कर सकते हो, वेल एंड गुड। आप अपना कंफर्ट जोन आपके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से चूज कर सकते हैं, राइट। इसीलिए कहते हैं कि वह संसार में किसी भी अवस्था में कैसे भी रहें, अगर भगवान की भक्ति कर सकता है तो वास्तव में क्या बन सकता है, महात्मा बन सकता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जैसे प्रहलाद महाराज, उनकी आयु थी बालक की, राइट। उनकी लाइफ में कांस्टेंट चैलेंज था, लेकिन बालक होते हुए भी, इतने चैलेंज होते हुए भी उन्होंने भक्ति को सरलता से कर लिया और भगवान नारायण की प्राप्ति कर ली। सनत कुमार जो है, उनका अवस्था थी बालक की, लेकिन उनका वेश था बैरागी का, सन्यासी का, उन्होंने भी भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया। नरसिंह मेहता, वो गृहस्थ थे लेकिन फाइनेंशियली गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति करके कृष्ण को प्राप्त कर लिया। अम्बरीश जी महाराज, वो गृहस्थ थे, वो गरीब नहीं थे, वो राजा थे। अगर कोई कहे कि राजा के लिए पॉसिबल नहीं है भगवान की भक्ति करना, भगवान की प्राप्ति करना, भागवतम उसका भी एग्जाम्पल देता है कि अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, समस्त समस्त भूखंड के राजा थे, इतने बड़े राजा थे, साथ में गृहस्थ भी थे, फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया। गोस्वामी वृंद वृंदावन में, जिसकी हम स्टार्टिंग में गुरु वंदना के अंदर उनको वंदना करते हैं, जो 6 गोस्वामी थे, वो कौन थे? बाय लाइफस्टाइल दे वर विरक्त साधु, लेकिन पहले क्या थे? वो एक गृहस्थ राजकुमार थे। वो दे वर वेरी वेल्दी, दे बिलोंग्स टू वेरी वेल्दी फैमिलीज, राइट। करोड़ों अरबों रुपए उस टाइम पे उनके पास थे, जिन सबका उन्होंने दान कर दिया और विरक्त साधु बन के रह रहे हैं। सो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन या आपकी सांसारिक सिचुएशन, राइट, इज नॉट, भक्ति इज नॉट डिपेंड ऑन दैट। आप गृहस्थ हो सकते हो, सन्यासी हो सकते हो, विरक्त हो सकते हो, चाहे आप गरीब हो सकते हो, पैसादार हो सकते हो, राजा हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, डजंट मैटर, दैट इज इररिलेवेंट। आप इन सब अवस्था में रहते हुए भी भगवान की भक्ति आसानी से कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि ये सुखपूर्वक किया जाने वाला योग है। इसीलिए भक्ति योग की जो महत्ता है, भक्ति योग की जो ग्लोरीज है, वो अप्रतिम है, क्योंकि आप किसी भी अवस्था में जो आपको सुटेबल हो उस तरीके से आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। 9.15। प्रभु, एक क्वेश्चन। यस प्रभु। तो प्रभु, जैसे आपने बोला श्रुति और स्मृति, राइट? तो अब गुरु ग्रंथ साहब तो वेदों से नहीं लिखा गया है, तो वो आप किसमें? स्मृति में आएगा वो प्रभु। तो वो जो कीर्तन जो सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो आप उसको कीर्तन में नहीं काउंट करेंगे? जो सत्संग करते हैं, जो जैसे गुरुद्वारा में वो नहीं, उसके अंदर उसके मुझे पंजाबी आती नहीं अच्छे से, पर मैंने जितने कीर्तन सुने हैं, दे आर ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, दे आर ग्लोरीफाइंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। राइट। तो बट गुरु ग्रंथ साहब जो आप बोलते हैं वो स्मृति में आएगा, बिकॉज वो गुरु के मुख से बोला गया है। हाँ, गुरु जो है, गुरु ने अपने नॉलेज को रियलाइज किया और उसका जो सार है वो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा। तो इट्स अ, श्रुति क्या है? सुना हुआ, और स्मृति क्या है? समझा हुआ। तो उन्होंने समझ के इस ग्रंथ की रचना की, तो वो स्मृति में आएगा, राइट। जैसे आप रामायण कहोगे, रामायण किसके अंदर आएगा? रामायण स्मृति के अंदर आएगा।
राइट। भागवत गीता जो है, राइट, वो किसके अंदर आएगी? वो स्मृति और स्मृति दोनों के अंदर आएगी, क्योंकि भगवान से कहा गया है और वेदव्यास ने कंपाइल किया. सो सिंस वेदव्यास हैज कंपाइल्ड इट, इट इज कम अंडर स्मृति, बट सिंस इट इज स्पोकन बाय भगवान हिमसेल्फ, इट्स कम अंडर श्रुति एज वेल. इज दैट क्लियर? ठीक है प्रभु. प्रभु एक क्वेश्चन, तो गीता स्मृति में क्यों आता है? क्योंकि वो तो फिर जो उन्होंने कहा वो एग्जैक्टली उन्होंने वैसा लिख दिया, राइट? सो इट्स नॉट लाइक उन्होंने समझ, इट्स लाइक जो उन्होंने कहा भगवान ने एज इट इज, हम कहते हैं ना, तो एज इट इज उन्होंने लिख दिया. तो इट्स लाइक उन्होंने समझ के अपने आप, मेरे को ये समझ में आया और मैंने ऐसा लिखा, तो ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन. सो अगर मैं आपको मैसेज करूं कि मेघा tell Purvi Didi to get this item from the grocery store. मैंने तुम्हें मैसेज किया and you forwarded the same message to Purvi Didi, right? Now this message classified into two things. What is first thing? ये मैसेज मेरा लिखा हुआ है, true. But if someone asks, ये तुम्हें मैसेज किसने भेजा Purvi Didi? What she will say? मुझे मेघा ने फॉरवर्ड किया. That message is forwarded by Megha, but that is also true. But it is written by me to you. That is also true. So मैसेज दोनों कैटेगरी में आएगा. तुमने फॉरवर्ड किया, मैंने लिखा हुआ. सिमिलरली जो भागवत गीता है, इसका मतलब सेम कैटेगरी. भगवान ने कहा है, लेकिन फॉरवर्ड किसने किया? हमारे व्हाट्सएप पे वेद व्यास ने किया. तो वो स्मृति में भी आएगा और स्मृति में भी आएगा, राइट? दो इट इज एज इट इज, बट इट इज कम्स फ्रॉम द पेन ऑफ वेद व्यास, राइट? उनका लिखा हुआ है वो, तो वो स्मृति में भी आएगा. बट दो इट इज स्पोकन बाय कृष्णा हिमसेल्फ, इज कंसिडर्ड श्रुति एज वेल, राइट? Yes. Any questions further? I need to get a water. Just give me 1 second. Okay, so we'll be on 9 But point. Prabhu, on this, Yes, yes. on this logic, I mean, to any other religious scripture will not fall under Shruti. Yes, Prabhu. Because it's not derived from Vedas. Yes. Even though it is derived from Veda, they consider the Shruti. So Shruti के अंदर technically दो ही की literature आएंगे प्रभु. One is Vedas and second is some of the Upanishad. बाकी सब स्मृति के अंदर आएंगे. Okay. 9.15 ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम. भगवान कह रहे हैं कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं, राइट? भगवान क्या समझा रहे हैं कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, फॉलोइंग द नॉलेज, या तो यज्ञ में लगे रहते हैं, राइट? वे भगवान की पूजा अनेक अद्वितीय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं. दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिवोशन प्रोसेस और अर्चना प्रोसेस. भगवान समझा रहे हैं, उनका क्लासिफिकेशन भगवान समझा रहे हैं. क्या कह रहे हैं कि ये जो श्लोक है वो पिछले श्लोकों का सारांश है. भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं वे महात्मा कहलाते हैं. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग क्या है? जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, राइट? एक तो विशुद्ध भक्त होते हैं जो भगवान के गुण, नाम, लीला, उनके कीर्तन में लगे रहते हैं और भगवान की दिव्य दैवी शक्ति में स्थित रहते हैं. भगवान ने कहा कि वो महात्मा जन है. दैट इज व्हाट ही सेज इन 13 and 14, द क्लासिफिकेशन ऑफ महात्मा जन. और यहाँ पे 15 में भगवान क्या कह रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो
महात्मा पद को प्राप्त नहीं करते। वाई? बिकॉज दे डोंट फॉल अंडर दैट कैटेगरी। किंतु वे विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते रहते हैं। इसमें से कुछ का वर्णन आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में आता है। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, तो आर्थी, जिज्ञासी, ज्ञानी, राइट? ही सेज दैट बिफोर। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी भिन्न होते हैं, राइट? एक तो महात्मा हो गए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। दूसरी कैटेगरी उससे भी नीचे क्या है कि आप अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु हैं। दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन इसके नीचे भी एक कैटेगरी है, कुछ लोग इसमें भी आते हैं जो इनसे भिन्न होते हैं। इनकी 3 कैटेगरी है। वो क्या है? परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर भगवान की पूजा करने वाला। दिस इज वेरी रिस्की कैटेगरी। ये क्या है? परमेश्वर और भगवान को एक मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं खुद भगवान हूँ, मरने के बाद मैं भगवान बन जाऊंगा। अभी मुझे भगवान की भक्ति की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि मुझे इस संसार से निकलना है। सो दे कंसिडर द भक्ति और द भगवान इज जस्ट अ टूल और इज जस्ट अ बोट टू क्रॉस द ओशन। जैसे ही मैं ओशन ऑफ दिस भवसागर क्रॉस करूंगा, मैं खुद भगवान बन जाऊंगा। वो इस निष्ठा से भगवान की भक्ति करते हैं। तो क्या है वो? परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और वे अपनी पूजा करते हैं। सेकेंड इज, दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक है, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। There might be some of the devotee here. I don't want to give a tag or name or something like that, but I have seen that. जब मैं जाता था, न्यू जर्सी में था, so I have seen that this is that ये इन सभी भगवानों के स्वरूप ये है। ये अपने हिसाब से बनाए हुए, शास्त्र विहीन, जिसका शास्त्र में कोई बैकअप नहीं है, शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है। जस्ट 500 साल या 200 साल या 300 साल पहले ये सो कॉल पर्सनालिटी को लोगों ने भगवान का स्वरूप दे दिया और उसके हिसाब से अपने लिटरेचर भी लिखना शुरू किया टू जस्टिफाई देयर ओन कॉन्कॉग्नेट फिलोसॉफीज, राइट? ये दूसरी कैटेगरी लोग हैं जो अपने हिसाब से, जो देवताओं के उपासक है या किसी और के उपासक है, किसी मनुष्य के भी उपासक हो सकते हैं, किसी फकीर के उपासक हो सकते हैं, किसी साधु बाबा के उपासक हो सकते हैं, और वो फिर क्या करते हैं कि नहीं, यही भगवान के स्वरूप है या यही भगवान है, भगवान इसी के अंदर से प्रकट हुए हैं। तो ये सब जो फिलोसॉफी करने वाले वो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग कौन है कि ये वह लोग हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोचते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। इसमें से सबसे अधम है नंबर 1 कैटेगरी के लोग। सो 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहले जो अपने आप को भगवान मान के पूजा करते हैं, खुद की पूजा करते हैं, खुद को परमेश्वर से अभिन्न समझते हैं, राइट? जिसको मायावादी फिलोसॉफी कहा गया है। दूसरे लोग हैं जो किसी ना किसी स्वरूप को या किसी किसी इंसान को या किसी ना किसी पर्सनालिटी को भगवान का स्वरूप मान के उसको जस्टिफाई करके फिर उसकी पूजा करते हैं या उसका प्रचार करते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग क्या है? इस ब्रह्मांड को भगवान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, राइट? सो इनमें से सबसे अधम कौन है? पहले कैटेगरी के लोग जो भगवान को खुद से अभिन्न करते हैं, राइट? और फिर खुद की पूजा करते हैं। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। सो भगवान यहाँ पे जो भक्तों की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, उनके जो तफावत समझा रहे हैं, वो क्या है कि अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। These are not Mahatmas. They are still the devotee here or there somehow or other. कुछ अंश में इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भगवान की कुछ उपासना कर लेते हैं या भक्ति कर लेते हैं, राइट? चाहे खुद को भगवान मानते हुए भी भगवान का नाम तो आया, तो भगवान कहते हैं कि ये कुछ कैटेगरीज के लोग हैं जो इनडायरेक्टली थोड़े अंश से मेरी भक्ति कर लेते हैं। बट भगवान कहते हैं महात्मा कौन है? ये जो 5 जो हमने श्लोक आज पढ़े, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? भगवान महात्मा का स्वरूप समझा रहे हैं
कह रहे हैं कि महात्मा कौन है? पहले जो दैवी प्रकृति के अंदर स्थित होते हैं, क्योंकि वो मेरी तरफ मुख करके खड़े हैं, मेरी तरफ चलना शुरू किया है, तो मेरी दैवी प्रकृति के अंदर वो स्थित हो जाते हैं और धीरे धीरे मेरी दैवी प्रकृति जो है, मेरी राधा रानी जो है, मेरी रमा देवी जो है, वो उन भक्तों को अपने बच्चों की तरह संभाल के मेरी तरफ ले आती है। Right, that is what the first characteristic of महात्मा, they situated into the दैवी प्रकृति। और दूसरी कैटेगरी भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो महात्मा है उनका काम क्या है? जो भगवान का गुणानुवाद करते हैं, भगवान का सत्संग करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो उसके अंदर भगवान का नाम, भगवान का गुण और भगवान की दिव्य लीलाओं का समावेश होता है। तो आप कोई भी कथा सुनने जाए, कोई भी कीर्तन सुनने जाए, अगर इसके अंदर ये तीन चीजें नहीं है तो समझना कि आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। राइट, so thank you. Hare Krishna. If there are any questions, we can take. So if there is no question, then we can start with chanting session. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuram Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastava Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare Krishna. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare 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 Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram Hare Hare.
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे हरि बोल निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि Thank you, Mataji. Vanchakalpatarubhascha kripa sindhubhyo कृपा सिंधुभये नाम वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Vibhor. हरि हरि बोल।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण रोहित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।